The hype is real, bro. इतने सारे लोग, इतनी ज्यादा hype and the खाना delivers. छोटा सा PCO को उन्होंने convert किया. अच्छा कुकी ना पहले वो माइक्रोवेव करते हैं. गुड़गांव का सीन भाई फुल पैसा वसूल था। एक साइड लेजेंड्स खड़े दूसरी साइड उसूल था। कुछ स्पॉट्स तो फेमस थे, नाम सबको याद था, पर कुछ हिडन गेम्स ने दिल पे सीधा वार किया। नौशीन ये क्या कर रखा है यार आपने? People are going crazy about your place. Where did the madness start? क्या कर रहे हो आप? As you can see, the place is packed and it's pretty much packed all through the day, so I'm really happy. Pack कैसे? आप क्या गोलगप्पे खिला रहे हो? No, क्या I खिला think रहे the opposite of Golgappas. Tell me everything about it and where are you from? I'm from Gurgaon actually. I actually studied in LA and concepts like these are very common there. उधर real food लाना बहुत easy होता है और बहुत quickly आप ला सकते हो. And people usually eat that for lunch, breakfast, dinner. We saw India does not have a similar concept. You could probably go to a Subway which has a lot of preservatives. We wanted to, fill in that gap. That's where this concept was born. हमारे खाने में हम लोग कोई preservatives, commercial ingredients नहीं use करते, taste enhancers, chemicals वगैरह नहीं use करते, refined oil, refined sugar, refined flour जैसे products नहीं use करते. Where does the name come from? We just wanted a cute two-syllable word that would be memorable. That's where this came from. It's basically no-brainer food. Correct. You don't have to think. And the most important thing is India believes in tasty food. So it's very taste-forward. It's not healthy because healthy is boring. It's bland. It's very tasty. मैं आपके पास आया इसलिए हूँ, मैंने आपकी वेबसाइट पे पढ़ा that we are not a healthy food outlet. We are Yeah. more about taste. We are about a lifestyle. We are Right. about being 1% better. Making small choices, अच्छे decisions जो आपको overall stack up करके एक अच्छा healthy lifestyle lead करने में enable करते हैं. What's the cuisine like? What's the masalas like? तो हमारे पास सारे cuisines हैं. हमारे food में steps होते हैं. You first start with the flavor. You select the flavor you want and you select what base you want. Second step is basically choosing a salad, a bowl or a wrap. You can have it either as a wrap, a salad bowl या फिर grain bowl. If you choose a bowl, we have grain options. So you either choose rice, quinoa, barnyard millet, pasta or noodles भी millet or whole wheat का है, no maida. These are all the grains, your rice, your quinoa. We make small batches, fresh batches, so that it's replaced very fast and nothing is kept for very long. This is our barnyard millet, and then you select the protein. जिसमें से 2 non-veg, 2 veg और 2 vegan options. And then everything is made and assembled fresh for you right here. Your step 3 is protein, which is the most important step, where you can choose veg, vegan or non-veg option. हमारे पास lentil falafel है, tofu है, herb paneer, spicy chicken, herb chicken. ये सारे options हैं. Now you see that small batch, so it's gone for refilling. That's the herbed paneer that has gone. This is a spicy paneer. This is your tofu normally, but it's over almost, Okay. so they have to get it. This is a herb chicken. This is your spicy chicken. Then we go on to the toppings. This first is the condiments right here. They're kept at a cold temperature. You have tzatziki, hummus, feta, guacamole, hummus, feta, tzatziki, pesto, 2 types of millet noodles and pasta, Does this parmesan go on cheese. the top of the bowl? Yes, these things go on the side of the bowl. Oh, there's so much more. Yeah, Wow. so then are different toppings of Right. the bowl. Beetroot, feta, chimichurri. There is pickled cucumbers, sweet potato, Asian cucumber. इतनी सारी चीजों के नाम आपने ले दिए हैं. Yeah, corn, salsa, sauerkraut, 2 types of broccoli, apples, carrots. Nosheen, let's show the madness. एक बार थोड़ा अंदर लेके चलना because I Sure. think the people will get the vibe जैसे हम अंदर step in करेंगे. Look at So this. welcome to Nubo. Wow, man. This is packed. खड़ने के लिए जगह मिलेगी. And कितना Maybe waiting we चल can रहा है stand अभी? here. I think quite a lot. We have very fast turning tables. Maybe if you're lucky, 10-15 minutes for a table. But we are also a very quick service restaurant. So your food is fast, your beverages are fast. You can eat quickly and What are the interiors like? मतलब ये कहाँ से inspired है? We wanted something warm, and that's why we put in so many curves so that यहाँ आके घर जैसा फील हो और ऐसे ना फील हो कि मेरे को ड्रेस अप होके आना है. It looks like an Apple store. Really, है ना? little futuristic हाँ for जी, sure. करेक्ट Yeah. करेक्ट. अभी जो मैंने 60 किलोस लूज किया है ना, आई थिंक ये जो जगह है मेरे जैसे लोगों के लिए आइडियल है, जो खाना भी चाहते हैं, अपना फूड एंजॉय भी करना चाहते हैं, एट द सेम टाइम हमें हेल्दी खाना चाहिए. तो इसमें भी प्रोटीन है, इसमें भी प्रोटीन है, इसमें ऑलिव ऑयल है, इसमें प्रोटीन नहीं है. ट्राई करते हैं. सबसे पहले तो इधर देखो, ये है हमारा वो बोल जिसकी हम बात कर रहे थे. इसमें काफी सारी चीजें हैं यार. इसमें पनीर है, उसके अलावा ये देखो, there's so many things. ब्रोकली है इधर, ये हैलोपेनियोज है, पूरा लोडेड बोल है. एंड एक बाइट लेते हैं इधर से. मैंने किनवा वाला ऑर्डर किया था, तो दिस इज द वन दैट आई गॉट. हियर इज अ बाइट. The hype is real, bro. इतने सारे लोग, इतनी ज्यादा hype and the खाना delivers. ये ऐसी वाली जगह नहीं है जहाँ पे आप एक बार जाओगे और आप बोलोगे कि बस मेरा हो गया. ये ऐसी जगह है जहाँ पे आप रोज आ सकते हो, अपनी मील्स ले सकते हो, एंजॉय कर सकते हो और डेली अलग cuisine ट्राई कर सकते हो. इस बेरी स्मूदी में मैंने वे प्रोटीन डलवाया है, तो ये भी फुल ऑफ प्रोटीन.
सुपर थिक यार, सुपर थिक स्मूदी है, मजेदार खाना है। एंड मेरे हिसाब से ना ये भी हमारा भारत है यार। और जैसे बाहर की कंट्री के लोग आते हैं वो जिस तरीके से इंडिया को दिखाते हैं वैसा हर देश है, बट यार ये भी इंडिया है। लुक एट दिस इज व्हाट वी आर मेड अप ऑफ, दिस इज आल्सो इंडिया यार। हमारे जेनजीज, हमारे मिलेनियल्स इतने बढ़िया बढ़िया ब्रांड्स बना रहे हैं। हमारे देश से निखिल कामत जैसे लोग निकले हैं। देयर आर सो मेनी अमेजिंग पीपल फ्रॉम आवर कंट्री और डूइंग ऑल ऑफ दीज अमेजिंग थिंग्स। आई थिंक दिस नीड्स टू गो वायरल। जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने एक एक चीज पे मेहनत करके ब्रांड बनाया है, इस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है, दिस नीड्स टू बी एवरीवेयर। हर इंडियन को पता होना चाहिए कि एक ब्रांड है नूबो जो हमारे इंडियंस ने शुरू किया है और वो ऐसी चीजें डिलीवर कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। Station wagon turn the caddy tire spin off. Can't be scared to thorn from हेलो, मेरी लाइफ हैज टेकन अ फुल सर्कल। इतना ज्यादा घुमा हूं, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, पिज्जाज एंड भाई आज एक ऐसी जगह पे मैं आ गया हूँ जहाँ पे ढाबा पनीर पिज्जा मिलता है, वो भी नेपोलिटन। आज कौन कौन से पिज्जाज आप खिला रहे हो हमें? सिंस आपको ढाबा पनीर बहुत इंटरेस्टिंग लगा, वी कैन डू ढाबा पनीर। वी शुड श्योरली डू भुजी, दैट इज प्योरली माय क्रिएशन, सो आई वुड लव यू टू टेस्ट इट। How many hours? The orders are coming in, so we are Bro, Yeah. crazy. So this is the bigger one, right? And how many hours are they fermented? So we fermented it for 48 hours. जितना लंबा आप अपने डो को स्लो फर्मेंट करोगे और कोल्ड फर्मेंट करोगे उतना ही ज्यादा वो इजी ऑन गट होगा। डो एक पिज्जा की जान होती है, इसको हम फर्मेंट करते हैं 48 आवर्स के लिए Right. इन रेफ्रिजरेशन। Oh. तो ये बहुत धीरे फर्मेंट होता है, इट बिकम्स वेरी लाइट ऑन योर Right. Then is it like double O flour? कौन सा फ्लावर यूज कर रहे हो? डबल ओ फ्लावर, इम्पोर्टेड फ्लावर, जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं दे आर 100% इम्पोर्टेड। बीट सेन Wow. मर्जानो अच्छा। फ्लावर हो गया। जी। हाँ, चीज हम इंडिया की यूज करते हैं। I see that the air pockets are already building. ये देखो एयर पॉकेट्स आने भी शुरू हो गए हैं। ये पिलाती है? नहीं, ये है हमारी ढाबा नॉर्थ इंडियन ग्रेवी। ओह, सो ये भी हम वी मेक इट इन हाउस, Wow, कॉम्बिनेशन man. ऑफ 3-4 थिंग्स। Can I say it? Can I say it? काजू मगज वाली ग्रेवी है ना? है ना? हाँ, हम सीक्रेट नहीं बताएंगे। This looks like a pumpkin sauce, but ये काजू मगज वाली ढाबा पनीर की ग्रेवी, and I'm so looking forward to this. And then this is cheese. बहुत थोड़ा सा हम डाइस्ड मोज़रेला डालते हैं एंड देन ऑन वी टॉप इट अप विद फ्रेश मोज़रेला। This is Because bell you need to peppers? get that Amul cheese flavor in this. ढाबा के लिए चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। एंड ये चेडर, Yeah, fresh mozzarella. आप इसका ना बैलेंस बना के चल रहे हो, ऐसा लग रहा है इटली और इंडिया का, कि हमारा ढाबा भी आ जाए और उनका जो नेपल्स है वो भी आ So जाए। this pizza is just like a baby of an Italian mother or an Indian father. और ये पिज्जा जब ओवन से बाहर आएगा ना, we'll हाँ जी। top it up with sirka onion. So you can imagine the burst of flavor. नीलम, I have to tell you one thing. मैं नहीं उम्मीद कर रहा था कि एक ट्रू ब्लू पिज्जेरिया में मुझे पनीर दिखेगा। This is real पनीर, जैसे वो मदर डेयरी वाला पनीर है, ये वो वाला है ना? हाँ, we'll show you the packet also. Why the ढाबा पनीर? इसके पीछे हमारी एक स्ट्रैटेजी है। The Talking, vibe talking. and the restaurant is for Gen Zs. हाँ जी। We want to speak to them. We want to have them a place of their own. But at the same time, we want to encourage them to come for a date with their mother or their father. Wow, man. So we want to have something for them as well. जी। But at the same time, although the flavors are Indian, हाँ जी। but जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स और जो टेक्सचर्स हैं देर ऑल इटालियन। ये अभी हम लगा रहे हैं अमूल का गार्लिक बटर, तो अमूल का सॉल्टेड बटर, उसमें भी ऐड पार्सले एंड फ्रेश गार्लिक एंड दैट्स व्हाट यू पुट इट ऑन द एजेस, बिकॉज़ जब आप एजेस कई लोग छोड़ देते हैं, आपने देखा होगा। जी जी जी। सो वी डोंट वांट पीपल टू वेस्ट द अमेजिंग एजेस। दिस इज द ढाबा पनीर, क्या नाम है इसका? ढाबा पनीर, बट एक चीज हम भूल गए, दैट इज द सिरका अनियन। ये सिरके वाले प्याज, और इससे हमारा जो एक्सपीरियंस है ढाबा वाला वो भी कंप्लीट हो गया। आई थिंक दिस इज बूजियर देन योर बूजी पिज्जा, इजंट इट? बूजी है बट ढाबा पनीर भी अपने आप में सॉलिड है। नाउ कम्स आवर स्टार ऑफ द शो, अच्छा, बूजी। या Is it like Kim Kardashian? is like luxury which is edible. Luxury that's edible. So this is the pilati. This is our Saint Marzano tomato sauce. हाँ जी, इसको आप कुक करते हो? नहीं, we don't cook it. We crush it. We put our seasoning, some garlic, some basil and some salt and all, हाँ जी। pepper, and that's it. The Saint Marzano tomatoes are very delicate. अगर आप उनको cook कर रहे हो ना, आप उनका flavor खराब कर रहे They should be cooked with the pizza. तो sauce के साथ, and this is some cheese. हो। This is diced mozzarella. ये हमारी fresh mozzarella, which is very creamy, very Right. fresh. It will go inside. अच्छा। जब ये बाहर निकल के आएगा, तब इसमें हम जो हमारी amazing toppings हैं, हाँ जी। then we'll put it. Yeah, वो stretch. luxury delicate है ना, हाँ we जी। cannot put it in the 500 degrees. Right, That's right, fine. right. Oh, you said 500? हाँ, so Wow. Napoleon style sourdough is baked at 450 to 500 degrees. So the bougie is here. ये bougie है? नहीं, अभी ये मुझे बनेगा. अच्छा। So अभी we need to put all the toppings. Wow, So दिखाओ। chef, first thing is the garlic butter on the edges. अच्छा। Here comes our ricotta cloud. थोड़ा मुझे लग रहा है कि अब महंगा होना शुरू हो गया है। अभी This हमारी fresh pesto. And here comes our walnuts. walnuts on a pizza. Surprisingly बहुत ही अच्छा crunch देता है and it goes really really well with pesto. Mamma mia. So that's ready.
Yeah, This is the that's boost, ready. this is the parmesan. That's It's it. ready. आज मैं बोल सकता हूँ स्वाद बढ़ाना करने की बारी आई क्योंकि हमारे सामने है ये पनीर ढाबा पनीर पिज्जा, लॉट ऑफ सिरके वाले प्याज। थोड़ा पास में आओ, देखो ये है जी सिरके वाले प्याज एंड साथ में शिमला मिर्च एंड एक नेपोलिटन बेस पे। मैं ढूंढ रहा था यार ये मिले कहीं पे। ये वाला जो है हल्का सा ठंडा हो गया बिकॉज हमने वीडियो के लिए वो वाला जो दूसरा बाद में बनवाया, बट पहले तो ये देखो पनीर एंड देन द सॉस और उसके साथ जो वो मखनी टाइप की सॉस है, अंदर प्याज है, शिमला मिर्च है। आई कैन एक्सपेक्ट द टेस्ट ऑलरेडी। इसमें पिलाती नहीं है, इसमें सैन मार्जानो नहीं है, इसमें काजू मगज की ग्रेवी है। पता है कौन सा पिज्जा है? ये वो पिज्जा है जो मेरी नानी को भी बहुत पसंद आएगा। ये वो शादी वाली पनीर की ग्रेवी है, उसके साथ पनीर एकदम सॉफ्ट मलाई पनीर है और पनीर को भी ना मैरिनेट किया हुआ हल्का सा, फ्लेवर एकदम परफेक्ट आ रहा है। और भाई वो सिरके वाले प्याज का क्रंच है ना, वो गेम चेंजर है। इसको छोड़ो, इधर आओ जरा, बूजी पे आओ। ओ ये भी इधर 1x आओ जरा, पास में आओ। ये देखो, लुक एट दिस, ये कितना मॉइस्ट है यार ये, ठीक है। इसमें बहुत कुछ है, मतलब पेस्टो भी है और वॉलनट्स है, अखरोट है भाई। वैसे मैं ये बोलने वाला था कि यहाँ पे आना है अपने पनीर ढाबा ये वाला खाने, पर नहीं, द बूजी इज क्रेजी। ये खतरनाक है यार। हॉट हनी, पेस्टो एंड द वॉलनट, आई लव द कॉम्बिनेशन। क्या कॉम्बिनेशन बनाया है भाई इन्होंने। I'm here for the bougie and stay here for the bougie। ये वाला पिज्जा जो है ये अपने मम्मा को, अपने पापा को, अपने चाची को, अपने ताया जी को खिलाना, बट ये आप खुद आगे खाना। I've been outside with the mice, eating that chicken and साहिल भाई, इस छोटे से पीसीओ के अंदर से आप इंडिया के बेस्ट पिज्जाज खिला रहे हो। मुझे बाकियों का नहीं पता, बट इंडिया में बेस्ट जर्मन पिज्जाज मैं दे रहा हूँ। इंडिया के बेस्ट जर्मन पिज्जाज? Yes। जर्मन पिज्जाज भी होते हैं? और क्या, कैसे बनाते हैं यार? आओ मैं बताता हूँ। हेलो, आपको तो पता ही है कि आपका अपना हरिया पिज्जा पगलू है और मैं इतना बड़ा पिज्जा पगलू हूँ कि आज मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ पे एक पीसीओ था। एक छोटा सा पीसीओ को उन्होंने कन्वर्ट किया, एक पिज्जा प्लेस बनाया और यहाँ पे इंडिया के बेस्ट जर्मन पिज्जाज मिल रहे हैं। नेपोलिटन नहीं, अमेरिकन नहीं, इटालियन नहीं, फ्रेंच नहीं, स्विस नहीं, इंडिया के बेस्ट जर्मन पिज्जाज यहाँ पे मिल रहे हैं और हमें पता ही नहीं था। मैंने सोचा कि ये एक्सप्लोरेशन और ये जर्नी, क्या कहते हैं, ढूंढने ढूंढाने की जो डिस्कवरी है वो मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे पिज्जाज हैं, जर्मन पिज्जाज क्या होते हैं, जर्मन पिज्जाज में नेपोलिटन पिज्जाज से क्या डिफरेंट होता है। पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप जर्मनी जाओ या यहाँ पे आओ जर्मन पिज्जाज खाने, तो आपको पता हो कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। साहिल, I've heard a lot about the place यार। People are going गागा और गैलेरिया में जब भी मतलब मैं आता हूँ ना, सब लोग कहते हैं वहाँ का पिज्जा खाना ही खाना है, हर बार मिस हो जाता है। बट दिस टाइम आई वाज लाइक अब तो मुझे आना ही आना है। सो ग्लैड कि आप भी यहीं हैं। तो मुझे बताओ कि व्हाट डू यू डू विद द पिज्जाज यार? पिज्जाज पूरे इंडिया में बन रहे हैं, मिल रहे हैं। मैं देखता रहता हूँ, यू कवर नेपोलिटन पिज्जाज अ लॉट। मैं नेपोलिटन तो खिलाऊंगा ही आपको, इसके साथ में आई एम गोइंग टू मेक यू ट्राई फ्लैम कुकिंग, दैट्स अ जर्मन बेस्ड पिज्जा। You're doing Neapolitan pizza and German pizza? Yes। कैसे आइडिया आया ये सब करने का? We went on a vacation to Italy। उधर जाके पता लगा कि there are such cafes doing live wood fired pizzas। Right। Got an idea from that। A Neapolitan pizza dough। And हम बहुत अलग तरीके से Neapolitan pizza dough कर रहे हैं। Fermentation period is around 24 to 48 hours। Hydration and a blend of flour is very different from other brands, and that gives that airy and light and also that hint of crispiness। हाइड्रेशन कितने परसेंट है? Hydration stays around 50 to 60%, not above 70% की बहुत ज़्यादा airy हो जाए, because we want to give that crispiness। So it's not moist, it's basically like a crusty pizza। Yes। Do you like the crunchy, crispy, crusty So ones? it's a combination of both, soft in the middle and crusty and very crisp on the edges। ये तो नेपोलिटन पिज्जा जो है वो रेडी हो रहा है। How far do you stretch it? कितने इंचेस का बनता है? Easily 11 to 12 inches stretch हो जाता है। अच्छा, ये is it Polish या कौन सा Biga, कौन सा मेथड यूज Yes, कर रहा it's Biga। Biga मेथड। ये देखो भाई, जब आपके पिज्जा आर्टिस्ट जो है वो ऐसे हो तो स्ट्रेच देखो कितना प्यारा आता है। दिस इज ऑल वुड? All wood। अच्छा, नो एलपीजी, No, नथिंग, no, दिस इज nothing। प्योर वुड। Yes। एंड कौन सी वुड है? Mango wood। मैंगो वुड। टेल मी अबाउट द सॉस। ये जो सॉस आपने डाली है, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ डार्क ब्राउनिश कलर। Yes, so it's very creamy। Mushrooms, a mix of mushrooms and cream। मशरूम्स एंड क्रीम एंड देन द चीज। कौन कौन सा चीज आपने डाला Cheese, है? it's mozzarella, a bit of parmesan and a bit of cheddar। Then goes a mix of normal mushrooms and shiitake mushrooms। एंड यू हैव लोडेड इट टू द टॉप यार। इज हर दिस बाइट में आना चाहिए आपको मशरूम। कितने साल हो गए आपको ये करते हुए? It's a 5th year now। एंड व्हेन यू स्टार्टेड विद द पिज़्ज़ास लाइक दिस? Yes, it's शुरू the से same quality। Yes। लोगों को तो टेस्टिंग फेज में ही मतलब कितना टाइम गुजर जाता है, बट आपने 5 साल पहले ये पिज्जा दे दिया था। दिस इज द वन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, जो नेपोलिटन पिज्जा आप खिला रहे हो विद मशरूम फ्लेवर बेसिकली। हाँ, ये आपका जर्मन पिज्जा है जिसकी मैंने बात करी थी। सुपर थिन क्रस्ट, क्रीम फ्रेश सॉस ऑन टॉप। इसके ऊपर आपको एक ऐसा इंग्रेडिएंट आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे वो इंग्रेडिएंट जाने
आने वाला है। ये जर्मन पिज्जा और इटालियन पिज्जा में डिफरेंस क्या है? जर्मन पिज्जा में इट्स रोल्ड वेरी मच कि बिल्कुल एक क्रैकर थिन क्रस्ट पिज्जा बन जाएगा। अनियंस तो यूजुअल इंग्रेडिएंट हो गया, आप गेस करो कौन सा इंग्रेडिएंट इसमें अगला जाने वाला है। ये यस, आप बताओ क्या है। ब्रो जैसे आप मुझे इतनी मतलब क्यूरियोसिटी वाला सवाल पूछो, अरबी तो नहीं है? वेरी क्लोज टू इट बट इट्स पंपकिन। पंपकिन डाल रहे हो पिज्जा में? ब्रो इज इट लाइक 2026 का पाइनएप्पल? नॉट एट ऑल। अच्छा, सो दिस इज अनियंस एंड पंपकिन स्लाइसेस है, मैरिनेट किए हुए आपने? बिल्कुल, इट्स स्पाइस्ड पंपकिन। पेरी पेरी क्या किया? पेरी पेरी, कैजन, a bit अच्छा। of other spices as well। जर्मन बेस पे इंडियन पिज्जा हो गया एक तरह से, है ना? डो इज वेरी सिमिलर टू नेपोलिटन बट वी रोल इट टू अ पॉइंट कि बहुत क्रैकर थिन क्रस्ट बन जाता है। दोनों भाई हैं, एक जर्मनी से है, एक इटली से है। एंड इधर देखो, मुझे ना एक बार अपनी पिलाती भी दिखाओ। We do two kinds, दो तरीके के पिलाती सॉस करते हैं। One is cooked, not cooked at all. Right. Just पिलाती, San Marzano tomatoes. Can you show me एक बार स्पून के साथ? This is the uncooked version. Uncooked version with garlic Right. and basil and some salt. Oh. And this is the cooked version. Right. At least 4 to 6 hours of cooking, slow cooking. So ये different recipes for different pizzas? Yes. And what kind of oven is it? मतलब ये wood fired है? Purely wood fired oven. अच्छा, इसमें LPG कुछ भी नहीं है? बिल्कुल। वाओ, ये जर्मन पिज्जा तो यार आज मैं ट्राई करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। यू सेड कि ये इंडिया में और कहीं नहीं मिलता। Nowhere else. हाउ डिड यू गेट द आइडिया एंड द रेसिपी? It was from that trip only. हाँ जी। An Australian couple doing this, a German couple doing this kind of pizza. अच्छा। We did a bit of research on it. एंड दैट वाज इन इटली? Yes. जब आप इटली गए तो वहाँ से काफी सारे बिजनेस आइडियाज ले आए। वो इन्वेस्टमेंट थी मतलब आपकी? बिल्कुल हाँ, है आप ना? कह सकते हो बिल्कुल Business- वसूल हो गया। बिल्कुल 100%। विद इन कुछ सेकंड्स में पक जाते हैं ना? हाउ हॉट इज द ओवन? कितने डिग्रीज पे Around हो? 400 degrees Celsius. ब्रो इधर देखो तो सही अंदर क्या माहौल बना हुआ है। ये वीडियो अगर आप सर्दी में देखोगे ना एकदम वार्मथ फील होगी, और अभी फिलहाल हमें गर्मी लग रही है। ओह, इज इट रेडी? Ready है? It's like Oh. takes hardly 90 seconds. यार क्या तरीके से चीज मेल्ट कर रहा है यार, मुंह में फुल ऑन पानी आ रहा है ब्रो। ओह इज इट? ओ भाई सुपर्ब यार। सो ये दोनों रेडी हैं? थोड़ा इसमें ऊपर से we'll be doing the garnishing. German pizza में it's almost done, just a bit of garnish. Black truffle में the truffle oil will go on top. The truffle oil gets brushed to the थोड़ा सा brushing normal corners, जो हाँ extra जी। virgin olive oil की होएगी, ऊपर से we'll get the truffle oil done. अच्छा, ट्रफल ऑयल ऊपर से जाएगा भाई। German pizza पे थोड़ा आरुगुला जाएगा, that's rocket leaves राइट। and parmesan on top. भाई लोग, स्वाद बटांद्रा करने की बारी है। पिज्जाज के लिए तो मैं क्रेजी हूँ, बट जर्मन पिज्जाज, ये है जी वो जर्मन पिज्जा जिसके बारे में बात चल रही है, जिसके बारे में बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं। पीसीओ को पिज्जा प्लेस में कन्वर्ट करके भाई ने गरम गरम है, पंपकिन के स्लाइसेस हैं, साथ में अनियंस हैं, और एकदम क्रंची, एकदम क्रिस्पी है। देखो नीचे से, देखो पका हुआ है अच्छे से। शिज बाइट। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ नेपोलिटन पिज्जा। मतलब मैं दीवाना हूँ, नेपोलिटन पिज्जा कहीं मिल जाए मेरा दिल आ जाता है, आपको पता है। जर्मन पिज्जाज आर गुड बट दिस इज एन एवरीडे पिज्जा, दिस इज नॉट अ स्पेशल पिज्जा। जैसे होता है ना, आज मैं पिज्जा खाने जा रहा हूँ, ये वो वाला नहीं है, ये है यार आज बहुत भूख लग रही है, चल पिज्जा खाते हैं, ये वो वाला है। ये है वो जो है स्पेशल वाला पिज्जा। लोग दिस से पास में ब्रो, ये देखो, ये है वो स्पेशल वाला। समझ गए? समझ गए ना? मज़ा आया। बट मज़ा मैं ज़्यादा ऐसे लूँगा। एक तो 50-55% हाइड्रेशन है, उसकी वजह से ना ज़्यादा मॉइस्ट नहीं है। मतलब इट्स लाइक इट्स नॉट ड्रॉपिंग। इसको आप सीधा भी ऐसे बाइट ले सकते हो, बट मैं पाए बना के बाइट लूँगा। बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ। इसमें जो ट्रफल ऑयल है ना, वो गेम चेंजर है। एंड मशरूम्स ना, मतलब इन्होंने हल्का हल्का मशरूम कहीं कहीं नहीं डाला हुआ, पूरी पाइल बनाई थी मशरूम्स की, उसको फिर फैलाया था। तो हर बाइट में मशरूम्स का क्रंच आएगा ही आएगा। क्रंच तो नहीं, सॉफ्टनेस आएगी। एंड देन लव इट, आई लव इट। मेरे हिसाब से अगर आप गैलरिया आ रहे हो तो यहाँ पे आपको ग्रोटो पिज्जा पे आके यू हैव टू हैव दिस ट्रुफल ऑयल पिज्जा। एंड इफ यू वांट टू स्किप ऑन कैलोरीज, अगर आपको चाहिए कि कैलोरीज कम खानी है और मुझे एक पिज्जा चाहिए विद अ डिफरेंट फ्लेवर, तो गो अहेड एंड हैव दिस जर्मन पिज्जा विद पंपकिन। बहुत कमाल है। नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू ट्राई द मार्गरीटा। Dropping buckets. गैलरिया में ना एक और जगह है जो बहुत क्रेजी है, उसका नाम है फेस। इट्स नॉट फेस, इट्स FES। पहले इसका नाम था फॉर अर्थ सेक, और अब हो गया है फॉर एवरीथिंग स्वीट विद फ्रिविल। मुझे इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताई है। द बेस्ट पार्ट व्हाट आई लव्ड वाज कि अंदर वाइब बड़ी प्यारी है, बहुत प्यारा खाएगा, पूरी गैलरिया वाली वाइब है। ये ना बुई कुकीज और साथ में आइसक्रीम सर्व कर रहे हैं, क्रेजी कॉम्बिनेशन। और जिस तरीके से वो बना रहे हैं बहुत कमाल है। बहुत सारी कुकीज रख रखी है, पाइल कर रखी है, आप चूज करो। मैं इतने ने बताया कि आप जो डार्क
चॉकलेट है या वो या वॉलनट्स, वो ट्राई करो। वे ट्राइंग द वॉलनट क्योंकि उन्होंने बोला कि यही ट्राई करनी है। अच्छा, कुकी ना पहले वो माइक्रोवेव करते हैं, ओवन में गर्म करके उसको एकदम पूरा प्रॉपर गुई कर देते हैं एंड देन दे सर्व इट विद वनीला आइसक्रीम। तो यहाँ से तोड़ते हैं कुकी को और इनकी जो आइसक्रीम्स है वो सारी इन हाउस है, कुकीज भी इन हाउस है, आइसक्रीम्स भी इन हाउस है। एक बाइट लेके बहुत गुई लगी है यार, मतलब ये लव इट, मजेदार आ रहा है। फ्रेश चर्न्ड आइसक्रीम है, वनीला एसेंस डाल रखा है, बहुत कम मीठा है। एंड द कुकीज टू डाई फॉर, वॉलनट के उसमें ना वॉलनट के पीसेस आ रहे हैं छोटे छोटे, बहुत सारा चॉकलेट है, कमाल है। और ये 2-3 फ्लेवर्स और हमने लिए हैं, मैंने सोचा ये सब ट्राई हो जाए। ये मैंगो है, ये देखो मैंगो है ना, ये है जी मैंगो, एग्जैक्टली वैसा जैसा मेरा एक प्रोटीन शेक होता है। और ये है बटर स्कॉच। जैसे इतने ने रेकमेंड किया है कैप टुकी के साथ ये वनीला लो, बट मुझे ये बटर स्कॉच ज्यादा अच्छी लगी। ब्यूटीफुल, बहुत बड़े कॉम्बिनेशन है, बहुत बढ़िया क्लाइमैक्स है हमारी वीडियो का। बहुत मजा आया गैलरी एक्सप्लोर करके। जैसे मैंने आपको बोला था कि बहुत सारी चीजें ऐसी जो ऑलरेडी नोन है, तो मैंने सोचा वो क्यों करनी है, कुछ नया करते हैं, कुछ यूनिक करते हैं। एंड भाई ये जितना कंटेंट आप तक पहुंच रहा है ना, उसमें से कुछ भी पेड नहीं है, सब कुछ मैं अब खुद से जाके, खुद से अपना एक्सप्लोरेशन करके, खुद से रिसर्च करके, चैट जीपीटी यूज करके, गूगल यूज करके ये सारी लिस्ट बनाता हूँ, अब तक लेके आता हूँ। अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक याद से करो, बिकॉज मैं ये करते रहना चाहता हूँ। वीडियोस को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसको इतना बड़ा कर देंगे, इतना बड़ा कर देंगे, आप बोलोगे हरिया भाई अब मजा आ रहा है।